गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। मैंने एक होमवर्क दिया था। यस, हेलो, मैंने ग्रुप में सेंड, मतलब 58 लोग, 58 पीपल्स आर कनेक्टेड। ओके, वेट अ मिनट, मैं जो डाउट्स वाला ग्रुप है उस पे सेंड करता हूँ। या हेलो, या लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया था। यस, हेलो, क्या क्या है इसका आंसर? क्या? इट्स सी। नो वेदांत, इट्स नॉट सी। सिद्धांत, ओके ओके, सिद्धांत गुड। ओके सिद्धि, या गार्गी, यस। आंसर इज ए, या आदित्य, ठीक है, गुड। Let's solve that particular problem and then we'll start the remaining portion of Goldstein experiment. Some of the students don't get the link, lecture link. You are from which center? Those who haven't got the lecture link. Yeah, sure. पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसका ये आंसर आया था। लेट्स से तुमको बोथ न्यूक्लियस एंड एटम्स आर गिवन स्फेरिकल। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन, सॉरी, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का एक्सप्रेशन गिवन है। ये दिस एक्सप्रेशन इज गिवन and mass number A, or mass number is also given 64, and atomic radius of atom is given, it is the 1 Armstrong, and we want to find out the fraction of the atomic volume that is occupied by the nucleus. मतलब nucleus जो है वो कितना fraction occupy कर रहा है, मतलब simply we just want to find out what is the volume of nucleus, volume of nucleus divided by volume of atom. The fraction of volume occupied by the nucleus, it means we just want to find out what is the volume of nucleus divided by volume of atom. Simple. The radius of atom is given 1 Armstrong. 1 Armstrong का conversion पता है? 1 Armstrong होता है तुम्हारे पास 10 to the power minus 10 मीटर। 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 मीटर। तो मेरे को अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए उन्होंने एक्सप्रेशन दे के रखा है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए एक्सप्रेशन गिवन है, इट इज 1.25 into 10 to the power minus 13 into a to the power 1/3 into centimeter। नहीं, रेडियस ऑफ एटम के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है,
रेडियस ऑफ एटम के लिए बोर मॉडल में अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने को सिर्फ न्यूक्लियस की रेडियस का ही फॉर्मूला पता है कि एटम का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, देयर इज वन फॉर्मूला जो अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल, अभी नहीं है वो फॉर्मूला, ठीक है। Mass number is given. From there, you can find out the radius of nucleus. It is 1.25 into 10 to the power minus 13 into mass number 64 is given to 64 to the power 1 by 3. What is the cube root of 64? What is the cube root of 64? It is the 4. So it's 1.25 into 10 to the power minus 13 in now am I audible? Yeah. Let's start. तुम्हारे पास क्या गिवन है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1.25 into 10 to the power minus 13. 64 का क्यूब रूट is 4. If you multiply it, you will get 5 into 10 to the power minus 13 centimeter, and centimeter को you can convert into meter. 1 centimeter is equals to 1 by 100 meter. 1 centimeter is equals to 1 by 100, and from there you will get the meter. तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा, you will get is the 5 into 10 to the power minus 15 meter. This is the radius of nucleus. ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, no? Wait. Hello, sir. Yeah. Sir, actually, we had got. So, I am a medical student, and so we had got a timetable where your lecture was destined for now. So, sir, what should we do? And we have already completed this lecture with you yesterday. आज लेक्चर मेडिकल में है या फिर मेंस में? Sir, we don't know सर because we have हमारे इसमें भी था, मेडिकल्स में भी था लेक्चर कैंप का. and the link which you sent us is for the atomic lecture 4 and it is for mains. It is mentioned मेंस. यस. या दिस इज मेरा लेक्चर आज मेंस में ही है. टुडे इज द वेडनेसडे ना. Yes, sir. But in the timetable, we recently received a new timetable, and today your lecture is at 10 o'clock. नहीं मतलब मेरा अभी 10 o'clock तो मेंस में लेक्चर है. So, sir, we have already completed this portion. So, sir, we can leave now. या यू कैन लीव. Okay, sir. Thank you, sir. या ओके सर, थैंक यू. बाय सर. या ओके बाय.
Sir, medical students don't have the lecture, right? हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे टाइम टेबल में मेंस का लेक्चर है, वो मैं ले रहा हूँ। मेरे टाइम टेबल में मेंस का लेक्चर है, अब पता नहीं उनके टाइम टेबल में क्या प्रॉब्लम हुआ, आई डोंट नो, बट सम ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर आपका मेडिकल में लेक्चर है। नहीं मतलब टाइम पे नहीं नहीं, मेंस का ही लेक्चर है और मैंने लिंक भी मेंस का ही सेंड किया। तो आप देखो ना कि मैंने हेडिंग क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग शेयर करो। मैंने लिखा है मेंस का ही लेक्चर, मैंने मेडिकल नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों के टाइम टेबल में लेक्चर है। हाँ मतलब उसके बाद मेरा लेक्चर है। हाँ 12 बजे का लेक्चर है मेरा। मेडिकल वालों को मैंने बोल दिया कि वो सेम सिलेबस तो है नहीं, क्योंकि मेंस वाले थोड़े पीछे हैं। हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? आई डोंट नो, बट समहाउ आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा खराब। या ओके, तो आर ऑफ न्यूक्लियस सबको क्लियर है? 5 × 10⁻⁻15 मीटर। यस, यस, नो? ओके, आर ऑफ एटम इज गिवन। आर ऑफ एटम कितना गिवन तुम्हारे पास? आर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का सिंपल मीनिंग 10⁻⁻10 मीटर। From there we can find out the R of nucleus divided by R of atom. R of nucleus कितना है तुम्हारे पास? 5 × 10⁻⁻15। R of atom तुम्हारे पास कितना है? 10⁻⁻10। From there you can find out the ratio of 5 × 10⁻⁻5. You can get the ratio of 5 × 10⁻⁻5. 5 × 10⁻⁻5 ऑप्शन में भी है, but we want to find out the what is the ratio of radius. We want to find out the ratio of volume of nucleus divided by volume of atom. एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या गिवन है वो तुमको पता होना चाहिए। तुमको वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, ना कि रेडियस का रेशियो चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होगा न्यूक्लियस का? स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम अगर नहीं पता है तो वो याद कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर ऑफ एटम का क्यूब।
4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा आर ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एटम का क्यूब। आर ऑफ न्यूक्लियस अपन आर ऑफ एटम का रेशियो इज गिवन, जो अपने ऊपर फाइंड आउट किया, इट इज द 5 into 10⁻⁻5 इसका क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारे पास 125, इसका हो जाएगा 10⁻⁻15, जिसको तुम लिख सकते हो 1.25 into 10⁻⁻13। अगर किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 8। क्लियर है सबको ये? बट यार तुम लोग 4-5 लोग ही मतलब कमेंट कर रहे हो। ओके फाइन, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। तुमको फर्स्ट रेज का फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल। नाउ वी विल सी द सेकंड पॉइंट। बच्चे एक चीज ये बताओ, ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना था? कितना था ऑर्डर बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके सिद्धांत, गुड। 10⁻⁻15 मीटर। और वैसे अगर मैं फाइंड आउट करूं कि ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम कितना होगा, देखो एटम का रेडियस का ऑर्डर अभी अगर अपन देखें तो देखो ये एटम का रेडियस दे के रखा है उसने, कितना 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा या 2 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, 3 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, तो किस ऑर्डर का होगा बताओ? एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर, गुड। From there we can find out the what is the ratio of radius of atom divided by radius of nucleus। एटम का रेडियस है 10⁻10 और न्यूक्लियस का रेडियस है 10⁻15। फ्रॉम देयर वी कैन से दैट कि रेशियो कितना हो जाएगा 10⁵। इट मींस r of atom is equals to 10⁵ टाइम्स ऑफ r of nucleus। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है? इज ए वेरी बिग नंबर। मतलब अगर सपोज एट न्यूक्लियस का रेडियस अगर 1 है ना, तो एटम का रेडियस 1 लाख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10⁵ का टाइम्स अगर न्यूक्लियस का रेडियस 1 है, एटम का रेडियस 10⁵ है, तो मतलब जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। यही सेम चीज रदरफोर्ड ने बोला था, उसके बाद उसने उसका मैथमेटिकल प्रूफ करके भी बता रहा। ये एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैथमेटिकल उसने प्रूफ भी किया है इस चीज का। क्लियर है बच्चे लोग ये वाला पॉइंट सबको? चलो, जिस तरीके से एटम का ये रेशियो है, कैन वी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का क्या रेशियो होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? इट इज द 4/3 पाई इंटू आर ऑफ एटम का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू आर ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। ओके वेदांत, +5 होगा ना सर? 4/3 cancel out. From there we can say that r of atom divided by r of nucleus इसका क्यूब। r of atom और r of nucleus is given, it is the 10⁵. 10⁵ का क्यूब है। From there we can say that volume of atom
is equals to 10 to the power 15 times वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर सपोज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ एटम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम? और यही स्टेटमेंट रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया भी था लास्ट लेक्चर में, देखो अपन ने ये चीज पढ़ा था। देखो थर्ड पॉइंट देखो इसका, it indicates that the volume occupied by the heavy positively charged body is very small as compared to total volume of atom। और अपन ने प्रूव भी कर दिया आज कितना है, कितना स्मॉलर है, 10 to the power 15 टाइम्स ज्यादा होगा किसका, एटम का। ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलो ये पॉइंट भी अपने पास हो गया। देन इसी तरीके से मैं सरफेस एरिया का भी रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। surface area of atom divided by surface area of nucleus। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए? इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R of atom divided by R of nucleus का स्क्वायर। यस रुचिर, जो तुम बोल रहे हो सही है। 10 to the power 30 कहाँ से होगा? 30 कैसे होगा? एटम पर न्यूक्लियस कितना? 10 to the power 5 %। रुचिर तू अपना माइक ऑन कर ले और पूछ ले इसका डाउट। ये हो जाएगा 10 to the power 5, तो यहाँ से हो जाएगा 10 to the power 10। सरफेस एरिया क्या होगा एटम का? 10 to the power 10 टाइम्स ज्यादा होगा न्यूक्लियस। रुचिर तेरा क्या डाउट है? सर डाउट नहीं था, सिर्फ अच्छा तू मेरे को बता रहा था, ठीक है। हाँ ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना स्मॉलर या फिर एटम कितना लार्जर, वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, तो रेशियो तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट पोस्टुलेट का। Then we see the third point. उसने जो थर्ड पॉइंट मेंशन करके रखा था, थर्ड पॉइंट था उसका, दिस इज द थर्ड पॉइंट। Each atom consists of a small heavy positively charged body located at the center known as the nucleus। जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहेगा उसको उसने क्या बोल के रखा था? न्यूक्लियस। नेक्स्ट, इन अ न्यूट्रल एटम, अगर कभी भी कोई भी न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही तुम्हारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? तुमको मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, तुमको मेरा वीडियो भी दिख रहा है? प्लेनेटरी मॉडल क्या था? उसने फिर क्वेश्चन ये रेज हुआ कि ठीक है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है मान लिया, बट इलेक्ट्रॉन का क्या? तो रदरफोर्ड ने बोला कि जिस तरीके से सारे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। जिस तरीके से सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट उसने दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चे लोग एक चीज ये बताओ, अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी एक कोई भी पार्टिकल है वो अगर सर्किल के अंदर
मूव कर रहा है, तो वहां पर एक फोर्स लगता है, इनसाइड या आउटसाइड, जो भी तुम फोर्स कंसिडर करो, क्या उस फोर्स का नाम क्या होता है? अगर कोई भी तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, यस, दे बोथ आर द सेम। अगर कोई भी एक पार्टिकल है, अगर वो तुम्हारे पास कभी भी एक इस तरीके से मूव कर रहा है सर्किल, तो तुम दो तरीके से चीजें बोल सकते हो, इनसाइड एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा या फिर आउटसाइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दे बोथ आर द सेम। क्या डिफरेंस है, यू विल सी इन द फिजिक्स, बट अभी के लिए अपने दोनों कंडीशन सेम ही है, ठीक है। दे बोथ फोर्सेज आर द सेम। इनसाइड लगता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, आउटसाइड जब लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। कब इनसाइड लगेगा, कब आउटसाइड लगेगा, ये तुम फिजिक्स में पढ़ लोगे, उसको अपन अभी उतना डिस्कस नहीं करेंगे। और अपने लिए कंसर्न की चीज क्या है, अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर सपोज तुम्हारे पास उसने क्या बोल के रखा था, ये ठीक है, ये तुम्हारे पास एक एटम है, यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेट, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेट है। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, जिसपे चार्ज कितना होगा, Z टाइम्स ऑफ E। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास ये सेल से सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा v वेलोसिटी से, ये उसने स्टेटमेंट दिया। और उसके साथ ही साथ एक चीज ये भी बोली, अगर सपोज ये मूव करेगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका वैल्यू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर क्या है, न्यूक्लियस से सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस, रेडियस कितना है सर्कुलर ऑर्बिट का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा तुम्हारे पास, mv स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और एक और चीज अपन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिटल, यस, ये रदरफोर्ड ने ही बोल के रखा। अपार्ट फ्रॉम दैट दो और चीजें डिस्कस करते हैं। लेट्स से अगर सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये एक चैप्टर आएगा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर इसका डेरिवेशन देखोगे, पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड है, बट अपने को सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। इफ टू चार्ज पार्टिकल आर एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो ये अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दे विल रिपेल टू ईच अदर। तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा और ये उस डायरेक्शन में वहां पे फोर्स लगाएगा। एंड जो फोर्स का वैल्यू होता है, फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, वो होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू कूलम्बिक कांस्टेंट। ये क्या है तुम्हारे पास, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स बोल दो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, दिस इज द सेम थिंग। इफ टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारे पास होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर कभी भी तुमको दो चार्ज पार्टिकल दिखे तो वहां पे फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड साथ ही साथ इफ टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है इज अ K Q1 Q2 अपॉन आर। बच्चे K कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इज गिवन, ये क्या है तुम्हारे पास कांस्टेंट, दैट इज द 9 into 10 to the power 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो अपने को सिर्फ वही चीज ध्यान रखनी है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारे पास K Q1 Q2 अपॉन आर।
वो आर स्क्वायर और ये आर, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं, बिकॉज इस चैप्टर में इतना ही है जो फिजिक्स से अपने को एक्सट्रैक्ट करना था। तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लगेगा, इनसाइड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर एक जेडी चार्ज है और बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, इनका डिस्टेंस आर है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? These two will attract to each other or repel? They will attract. और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा तुम्हारे पास के, Q1 कितना है ये जेडी, Q2 कितना है तुम्हारे पास ई। सर माइनस ही ले लें क्या बच्चे, डायरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शंस अपन देख सकते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी दो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन वैसे फाइंड आउट कर लेंगे, बट मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे माइनस की नहीं लिखा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये अट्रैक्शन फोर्स मतलब इनसाइड लगेगा। इनसाइड तुम्हारे पास फोर्स क्या लग जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पूरा थ्योरी है, यहाँ पे किसी को अगर कुछ डाउट है तो देख लेना, कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया है। क्लियर है यहाँ तक सबको, जो भी समझाया वो? यस नो? बच्चे सिद्धांत, अगर सपोज दो पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर से। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे तो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, दो नेगेटिव चार्ज होंगे तब भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव था इसलिए डायरेक्शन इस तरीके से लिख दिया, अट्रैक्शन वाला डायरेक्शन लिख दिया, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसके ऊपर, तो वहां पर डायरेक्शन उल्टा करके रखा गया। सिद्धांत क्लियर है? चलो अब उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन सर्किल में मूव तो कर रहा है डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में, एंड बट उसने एक स्टेटमेंट क्या दिया, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग, 6 पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेबल इन देयर पाथ। मतलब जो भी तुम्हारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है बाहर की तरफ एंड जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है इनसाइड, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे और इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मूव करता रहेगा। अगर सपोज एक ही फोर्स अगर ज्यादा होता, लेट्स से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता एज कम्पेयर टू कूलम्बिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, क्या वो स्टेबल रह पाता? क्या इलेक्ट्रॉन स्टेबल रह पाता? नो, वो बाहर की तरफ चला जाता। अगर लेट्स से कूलम्बिक फोर्स ज्यादा होता एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन क्या होता? अगर जो इनसाइड फोर्स लग रहा है वो अगर ज्यादा होता जो आउटसाइड जो फोर्स लग रहा है उससे, देन क्या होता? इट विल मूव इनसाइड। वो क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो अभी के लिए रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो तुम्हारे पास कूलम्बिक फोर्स है, दे विल बैलेंस ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन वन सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ऐसे मूव करता रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है तो अपन आगे मूव करते हैं। चलो सब क्लियर है तो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। जस्ट क्या होगा बोलो, जस्ट कुछ डाउट है? हाँ बच्चे, कूलम्बिक फोर्स मतलब जो अनसाइड की तरफ लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, उसी को मैं कूलम्बिक फोर्स बोलता हूँ।
बट अब रदरफोर्ड के लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है, लिमिटेशन पे ध्यान से सुनना। उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन मेंशन नहीं करके रखा। उसने ये नहीं बताया था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव तो कर रहा है, बट न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है इसके बारे में उसने कुछ भी पॉइंट मेंशन नहीं किया था। तो फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशन उसका वही था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, बट उसका डिस्टेंस क्या होगा न्यूक्लियस से उसके बारे में उसने मेंशन नहीं किया था। तो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस आर नॉट मेंशन, वो मेंशन नहीं था। सेकंड पॉइंट जो था, ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, it does not obey the Maxwell law of electrodynamics. Maxwell law of electrodynamics क्या है, अगर कोई भी एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल है, अगर वो अंडर एक्सेलरेशन है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। मैक्सवेल ये जो है मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं कर रहा था। क्या है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है एंड वो अंडर एक्सेलरेशन है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पास कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा। ये स्टेटमेंट उसने दिया। अगर इलेक्ट्रॉन भी ऐसा करेगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो रदरफोर्ड, वो मैक्सवेल ने बाद में एक्सप्लेन। तो लेट्स से अगर सपोज मैं तुमको बोलूं कि तुम अपना जो मैक्सिमम स्पीड है ना उससे रन करना स्टार्ट करो, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट 15 मिनट्स क्या होगा, तुम्हारा वही सेम स्पीड मेंटेन रहेगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो रहा है डिक्रीज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनर्जी लॉस हो रहा है। यस, एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि अगर सपोज तुम 10 मिनट तक कंटिन्यूसली क्या करोगे, रन कर, जो तुमने एनर्जी सस्टेन करके रखा है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, लूज होगा। तो जब भी एनर्जी लॉस होगा उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, स्पीड। ये समझ में आता है? यस नो? तो होता है कि इलेक्ट्रॉन लेट से मूव करेगा और कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस कर रहा है। एंड वी ऑल नो दैट अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो वेलोसिटी स्पीड पे क्या होगा, अफेक्ट होगा, स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, एमवी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी कम हो जाएगा। क्या इनसे बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है कौन सा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये डिक्रीज हो गया। बट अंदर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या इनसाइड वाला फोर्स चेंज हुआ है क्या? क्या एनर्जी लॉस के कारण इनसाइड वाले फोर्स पे कुछ अफेक्ट होगा क्या? नो। आउटसाइड वाला फोर्स कम हो गया है। यस, इसका मतलब इनसाइड वाला फोर्स वही है, आउटसाइड कम हो गया है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, तुम्हारे पास इस सर्कुलर पाथ में, सॉरी स्पाइरल पाथ में मूव करते 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 वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट डज नॉट फॉलो द मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो स्टेट क्या करता है, व्हेनेवर स्मॉल चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन शुड कंटिन्यूसली लूज एनर्जी, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा स्पीड पे। जैसे ही स्पीड कम होगा तो स्पाइरल पाथ में तो अंदर फोर्स उतना ही लग रहा है, बाहर फोर्स कम लग रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड वो स्पाइरल पाथ में मूव करते करते वो सेंटर में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब स्टेबल ही नहीं। फिर आए बोर। बोर ने क्या किया, टाइम भी निकाल लिया। तुम फिजिक्स में फोर्स जब पढ़ोगे तो तुम टाइम भी निकाल सकते हो। उसने टाइम निकाल के ये कंक्लूड भी कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में ऐसे अगर करेगा ना, इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -8 सेकंड में ही क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो 10 टू दी पावर -8 सेकंड में ही क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये पॉइंट सबको क्लियर है, सेकंड एंड थर्ड? तो जो तुम अभी तक पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर पे सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो रदरफोर्ड का थ्योरी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि अशोक इन्होंने क्या किया, बोर ने कैलकुलेट भी कर लिया कि लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्या करेगा, फॉल कर जाए। बोर ने कैलकुलेट करके बताया कि ये कम से कम 10 टू दी पावर -8 सेकंड में ही फॉल कर जाएगा अंदर, ठीक है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन फॉल ही कर गया, सर्कुलर ऑर्बिट में है ही नहीं, इसका मतलब वो एटम स्टेबल ही नहीं, तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये वाला सेक्शन सबको? एंड तो सर ये सही है फिर नहीं है? एक्चुअल में सही है ये स्टेटमेंट, सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में ही होता है, ये रदरफोर्ड का थ्योरी सही था। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये उसने स्टेटमेंट तो दिया, बट वहां पे कुछ फ्लॉस थे, उन फ्लॉ को दूर किया बोर। बोर ने यही सेम स्टेटमेंट बोला था कि इलेक्ट्रॉन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बैलेंस करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। वो उसने आगे एक और थ्योरी भी उसके लिए दिया, इसीलिए यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट यही लिख के रखा है, आफ्टर दैट नील बोर प्रपोज्ड इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अगर मेरे को एग्जाम में किसी ने बोला क्या प्लेनेटरी मॉडल गलत है क्या, हाँ, मतलब उसमें कुछ फ्लॉस तो थे, उसको इम्प्रूव किसने किया है? नील बोर। उसको इम्प्रूव किसने करके रखा था? नील बोर ने। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एंड फोर्थ पॉइंट अभी के लिए जस्ट लिख के रखेंगे अपन, उसको अपन बाद में देखेंगे जब बोर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम के बारे में अभी मैंने तुमको कुछ भी नहीं बताया। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये अपन देखेंगे बोर मॉडल के कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज द एमिसिव स्पेक्ट्रम। तो अभी के लिए सिर्फ पॉइंट ध्यान रखो। क्या सब लोग साथ में हैं? सब कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो ये तुम्हारे पास रदरफोर्ड का जो थ्योरी था वो फिनिश हो गया। ओके, नाउ लेट्स वेट। वेट, हाँ, चल अपना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाकी है, याद है? अपन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन रिमेनिंग है, यस। मैंने बताया था कि पहले मैं रदरफोर्ड पढ़ाऊंगा, फिर मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाऊंगा, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल सारे पहले आ गए थे। तुम्हारा जितना भी थ्योरेटिकल सेक्शन था वो मोस्टली आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तुम्हारे पास सारे के सारे अब न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी उतना थ्योरेटिकल सेक्शन नहीं रहेगा। देखो अब एक और चीज सुनो ध्यान से। रदरफोर्ड का जब प्लेनेटरी मॉडल फेल हुआ ना, उसके बाद उस टाइम ये भी कमेंट किया कि ठीक है, एक चीज लॉजिकली सोचो, क्या रदरफोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया था क्या कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहेगा? यस और नो? अब तुम एक चीज लॉजिकली सोचो, अगर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इसमें इतने स्मॉल वॉल्यूम में अगर कंसंट्रेटेड है, तो क्या वो रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे? यस, वो रिपेल तो करेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे तो वो तो स्टेबल ही नहीं। हाँ या ना? अगर वो रिपेल करेंगे तो वो तो स्टेबल ही नहीं। यस, तो ये फिर पॉइंट फिर से रेज हुआ कि सर अगर रदरफोर्ड को बोला कि अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे हैं तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर रिपेल करेंगे तो स्टेबल ही नहीं। फिर रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया, इट्स नॉट लाइक दैट कि सारा पॉजिटिव के सेंटर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज के अलावा कोई और पार्टिकल्स भी होंगे। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज के अलावा कोई और पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, जो वहां पे रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करेगा। क्लियर है? तो रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कमेंट किया था कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस में और भी कुछ एटम्स होंगे। उसने डिस्कवरी नहीं किया था, बट डेफिनेटली ये पॉइंट उसने मेंशन किया। और उसका एक स्टूडेंट था जेम्स चैडविक,
उसने डिस्कवरी किया था किसका, न्यूट्रॉन्स का, बट रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट पहले ही दे चुका। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बहुत लेट डिस्कवरी हुआ है, मॉडल आ गए थे 1910 में, 1915 में सारे मॉडल्स आ गए थे, बट जो डिस्कवरी होके रखा था वो देखो कब होके रखा है इसका डिस्कवरी, 1932। बिकॉज न्यूट्रॉन्स क्या थे, वो न्यूट्रल थे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब अफेक्ट ही नहीं डाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वो ना ही डेविएट हो रहे, तो अपने को आइडिया नहीं मिल रहा। तो एक तो ये चीज बोली। एक क्या हुआ, लेट्स से अगर सपोज तुम ध्यान से चीजों को सुनना, ठीक है, मेरे को हीलियम का लेट्स से उस टाइम हीलियम है 2 और 4, इस टाइम तो प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, तो लेट्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2, यस। तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा, क्या मैं मास ऑफ वन एटम कैसा लिख सकता हूँ, 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मास, यस और नो। न्यूट्रॉन नहीं थे ना उस टाइम, और मेरे को पता है कि प्रोटॉन का मास जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन के मास को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकता हूँ? तो यहाँ से वी कैन कमेंट दैट कि तुम्हारे पास मास ऑफ वन एटम कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यस और नो। बट एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, जब कैलकुलेट किया हीलियम के एक एटम का मास, तो वो आया 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट से बोल रहे हैं कि जो मास होगा वो 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन, और जब अपन मैथमेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ही आ रहा मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, यस, हाँ या ना, तो कुछ तो प्रॉब्लम था, ठीक है। तो एटॉमिक मास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो तुम्हारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलेगा, बट एटलीस्ट वो ऑलमोस्ट क्या आ रहा था, डबल आ रहा था। डबल आने का मतलब बच्चे एक्सपेरिमेंटली तो कैलकुलेट कर सकता है ना, अगर तेरे को E/m रेशियो पता है तो चिर, अगर तेरे को हीलियम गैस का E/m रेशियो पता है, हीलियम पे चार्ज भी पता है, तो मास फाइंड आउट कर सकता है ना वो, ठीक है। तो तुम्हारे पास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम बाद में कैसे रिजॉल्व हुई, बाद में उन्होंने क्या कमेंट किया, बाद में उन्होंने कमेंट किया कि लेट्स से कि ठीक है, कुछ फंडा में जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो अपना मास कितना आना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था। क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इसमें कितने हैं, 2 ही तो है। ये मैं बहुत ही तुम्हारे पास फंडामेंटल मेथड नहीं बता रहा न्यूट्रॉन का मास निकालने के लिए, रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट किया हो। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन आना चाहिए था, इट इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। पहले लिखा था, पहले अपन ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही लिखा था, न्यूट्रॉन को कंसिडर नहीं किया था। जब डिस्कवरी हो गया तो मैंने न्यूट्रॉन भी कंसिडर किया। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 2। अब मैं एक फिर से स्टेटमेंट लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास तो 0, इलेक्ट्रॉन का मास 0, तो यहाँ से क्या कमेंट कर सकता हूँ कि 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, यस। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो वी कैन सिंपली से दैट मास ऑफ प्रोटॉन approximately equal to mass of neutron, yes or no। ये मैंने एक बहुत वेग तरीका निकाला है जिससे तुम न्यूट्रॉन का मास निकाले, उन्होंने एक्चुअल में ऐसे फाइंड आउट नहीं किया था, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास कैसे होता है।
बिकॉज अगेन इसका कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका मास ऐसे फाइंड आउट नहीं किया था, ठीक है। बट ऐसे ही रफ कैलकुलेशन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कैसे फाइंड आउट किया था अपन ने? क्या ई बाई एम रेशियो से फाइंड आउट किया था क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास? क्या ई बाई एम रेशियो से फाइंड आउट किया था ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास? यस और नो? बट अगर सपोज मैं ई बाई एम रेशियो की बात करूं, ई बाई एम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। तो ई बाई एम रेशियो कितना होगा? ई बाई एम रेशियो कितना होगा? वो भी 0 होगा। अगर ई बाई एम रेशियो ही 0 है तो क्या मैं ई बाई एम रेशियो से न्यूट्रॉन का मास फाइंड आउट कर सकता हूँ? या मास ऑफ न्यूट्रॉन में ई बाई एम रेशियो से फाइंड आउट कर, अगर वो आ ही 0 रहा है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे करें? यस। हाँ मतलब नहीं देगा, 0/0 थोड़ी है, मतलब मास कुछ तो होगा ना न्यूट्रॉन का, 0 थोड़ी है मास न्यूट्रॉन का। मतलब तुम न्यूट्रॉन का मास तो फाइंड आउट ऐसे तो नहीं कर सकते। मैंने तुमको जस्ट ऐसे ही बताया कि इस तरीके से कर सकते हो, बट एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन का मास फाइंड आउट किया था वो किया था एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन से। कोई अगर पूछे तो पता होना चाहिए, बट एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन अभी तक तुमको लगाना नहीं आता, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट अभी भी अपने सिलेबस में नहीं। बट किसी ने पूछा कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन का मास तो ई बाई एम रेशियो से फाइंड आउट किया था, प्रोटॉन का मास भी ई बाई एम रेशियो से फाइंड आउट किया था, न्यूट्रॉन का मास तो ई बाई एम रेशियो से फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ई बाई एम रेशियो ही खुद 0 है। तो वी विल फाइंड आउट द ई बाई एम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन बाय एनर्जी एंड मोमेंटम कन्वर्जेंस, वो पता होना चाहिए बस। स्टेटमेंट ध्यान रखो, उसका एक्सपेरिमेंट अगेन अपने सिलेबस में नहीं। क्लियर हुआ न्यूट्रॉन का क्या स्टेटमेंट था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे आया एंड ऑल? ठीक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसमें जो स्टेटमेंट है यहाँ से अपन देखते हैं, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से, atomic mass of the different atom could not explain, it was accepted that atoms consist only proton and electron। मतलब अगर मैं 4 times of mass of proton is not equals to 2 times of mass of proton for helium, आना 4 चाहिए था बट आ 2 ही रहा है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे थे। तो रदरफोर्ड ने बोला कि, रदरफोर्ड को क्या बोला था कि सारा का सारा अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहेगा तो वो तो स्टेबल ही नहीं रहेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दिया, there must be present at least a third type of fundamental particle which should be electrical neutral, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, and possess nearly equal to the mass possess, mass मिसिंग है यहाँ पे, mass possess nearly equal to the mass of proton। ये सबको पॉइंट क्लियर है क्या? डिस्कवरी नहीं किया था रदरफोर्ड ने, बट रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दे दिया था। क्यों स्टेटमेंट दिया था? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं न्यूक्लियस पे रिपेल करेंगे। रदरफोर्ड बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ कोई और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो वहां पे रिपल्सन फोर्स को मिनिमाइज करेंगे। डन ये वाला पॉइंट सबको? चलो फिर आया साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। चैडविक ने क्या किया, उसने बेरिलियम का एक एटम लिया, उस पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए, उसने बेरिलियम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए तो वहां से कार्बन का एक न्यूक्लियस मिला एंड कुछ और रेज भी मिली, कुछ और क्या मिली उसको? रेज।
ठीक है, उन रेज को उसने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स। अगर बेरिलियम के किसी भी बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अगर तुम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करोगे तो यू विल गेट द कार्बन का न्यूक्लियस एंड कुछ रेज मिली, उन रेज को उसने क्या बोल के रखा था, न्यूट्रॉन्स। अब ये कैसे फाइंड आउट किया न्यूट्रॉन्स, एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखोगे ना, तो दिस प्लस दिस का समेशन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। जो रिएक्टेंट में जो साइड डिनोमिनेटर में जो टर्म्स लिखी रहती है उनका समेशन 4 + 2 is equals to 6 + 2. From there you can find out the A. A कितना आएगा, 0। और वही सेम चीज जो पावर में जो लिखा है वो भी सेम, उसको भी समेशन कर सकते हो। तो 9 + 4 is equals to 12 + B। तो यहाँ से you can find out the B। तो अगर कभी भी तुमको ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन दे के रखा हो और किसी एक को अननोन बता के रखा हो कि लेट्स से ए और बी फाइंड आउट करो, कुछ भी नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका समेशन कर लो, सॉरी सबस्क्रिप्ट में है उसका समेशन कर लो, और जो पावर में है उसका समेशन करके इक्वल कर लो, यू विल गेट द अननोन वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब इसका अब सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा लेट्स से ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, इसको सिंबल दिया न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। ये न्यूट्रॉन का सिंबल क्यों है ये अभी अपन नेक्स्ट टेबल में देखेंगे, तो वहां से तुमको क्लियर होगा व्हाई दिस सिंबल इज पर्टिकुलर फॉर द न्यूट्रॉन। पर अभी अपने को सिर्फ सिंबल मिल गया। तो अपन एक काम ये करते हैं, बार बार चीजें याद करने से अच्छा अपन एक ही टेबल याद कर लेते हैं। क्या करना है अपने को, अपन सारा एक ही टेबल याद कर लेते हैं, उससे अपना सारा काम फिनिश हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत बार काम में आएगा। एक और अपन ने हेडिंग लिख लिया, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी डिस्कवरी। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था? प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? ओके, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी? जे जे। अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे जे थॉमसन है ना, रदरफोर्ड ने कहाँ से किया? चल, तो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना है? 1.675 into 10। यस बोलो। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना है? 1.672 into 10⁻⁻27। इसका कैसे फाइंड आउट किया था? E/m रेशियो से। इसका भी कैसे फाइंड आउट किया था? E/m रेशियो से। मैंने तुमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास निकालना बताया है E/m रेशियो से, यस याद है? न्यूट्रॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया था अपन ने? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किससे किया था? मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन से। ऊपर लिखा है एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। जो सिलेबस में नहीं है तो इसलिए अपन ने वो नहीं पढ़ा। किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? ऑलमोस्ट इक्वल है बट स्लाइटली किसका ज्यादा है? न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली क्या है तुम्हारे पास, ज्यादा है, तो वो चीज भी ध्यान रखो, ठीक है।
चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0। बट जनरली अगर कभी भी तुमने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है अपन बोलते हैं -1, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है अपन बोलते हैं +1। जो +1 और -1 होता है वो रिलेटिव चार्ज होता है। +1 और -1 क्या होता है तुम्हारे पास, रिलेटिव चार्ज अपन बोलते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -p और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +। रिलेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं, रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं, दैट वी विल सी अभी के लिए, ठीक है। रिलेटिव मास के लिए क्या करना है तुमको मास को डिवाइड करना है। जो मैंने 1 AMU बताया था याद होगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। लास्ट क्लास में अपन ने 1 AMU का वैल्यू लिखा था। यस, तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको प्रोटॉन का रिलेटिव मास निकालना है ना। तो प्रोटॉन का रिलेटिव मास के लिए प्रोटॉन का मास लिखो 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27, उसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 से, अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। अगर प्रोटॉन का रिलेटिव मास निकालना है तो क्या करूंगा, प्रोटॉन का मास लिखूंगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27, उसको डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg से। क्या वो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा क्या? यस नो? क्या न्यूट्रॉन के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा क्या? क्या इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला वैल्यू आएगा क्या? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज वेरी नेग्लिजिबल? इट इज वेरी नेग्लिजिबल। वैसे रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए क्या करना है तुमको चार्ज को डिवाइड करना है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जो भी प्रोटॉन पे चार्ज है उसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो कितना चार्ज आएगा? प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, उसको डिवाइड भी इसी नंबर से करना है, तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। न्यूट्रॉन के लिए क्या आएगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है तो 0/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए -1 आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, -1 आएगा। तो रिलेटिव मास प्रोटॉन का कितना है 1, न्यूट्रॉन का कितना है 1, इलेक्ट्रॉन का कितना है नेग्लिजिबल, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ, इसका मास अप्रोक्सीमेटली कितना है 0 बोल सकता हूँ। रिलेटिव मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 0, चार्ज कितना है प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है -1, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है 0। तो जो भी अपन बात करते हैं प्रोटॉन पे चार्ज +1 मतलब वो रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है -1 वो भी रिलेटिव चार्ज है। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक्चुअल में प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर बच्चे लोग ये वाला पार्ट? चलो देन वी विल सी। अब क्या करते हैं, सिंबल लिखने के लिए लेट्स से प्रोटॉन, तो जो चार्ज होता है उसको लिखते हैं सब्स्क्रिप्ट में, मास होता है उसको लिखते हैं पावर में, तो यहाँ से सिंबल बन जाता है। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज लिखूंगा सब्स्क्रिप्ट में, मास लिखूंगा पावर में, तो ये न्यूट्रॉन का सिंबल। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज लिखूंगा सब्स्क्रिप्ट में और मास लिखूंगा जो कि 0 है पावर में। तो आज के बाद जरूरी नहीं है कि तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे, तुमको ऐसे सिंबल्स भी दे सकते हैं। और मैंने प्रूफ कर दिया कि ये वाला सिंबल जो है वो न्यूट्रॉन का क्यों है, न्यूट्रॉन को वैसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इसको तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज द सेम थिंग।
1 को इस साइड लिखो या 1 को उस साइड लिखो, दिस इज द सेम, तो वैसे कुछ फर्क नहीं। क्लियर? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो दे कैन आस्क। तो सर मेरे को ये सेक्शन की लेट, अब जो है तुम्हारा ये पोर्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तुमको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तुम्हारा जो भी था थ्योरेटिकल जितना भी सेक्शन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, सर has मुझे been एक finished। डाउट है। बोलो। सर ये टेबल के ऊपर वो बेरिलियम से वो इक्वेशन मुझे वो समझ में नहीं आया। वो इक्वेशन था, बेरिलियम को अगर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करोगे तो यू विल गेट द कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है, और कुछ रेज मिलेगी। वो कौन सी रेस थी अपने को नहीं पता थी, इसलिए उसको क्या मान लिया, उस पर्टिकुलर एटम को या पार्टिकल को एक्स मान लिया, जिसके सब्स्क्रिप्ट में तो लिख दिया ए और पावर में लिख दिया बी, ठीक है। हाँ सर। और ए और बी कैसे निकालना है, जो भी तुम्हारे पास सब्स्क्रिप्ट में है रिएक्टेंट में समेशन करो। रिएक्टेंट में क्या है 4+2, प्रोडक्ट में क्या है 6+8, तो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द ए। ए कितना आ जाएगा 0, यस। यस सर। और वही अगर पावर में देखूंगा तो पावर में समेशन क्या हो जाएगा 6+4 is equals to 12 plus b. From there we can find out the b. Yes. यस सर। If we know the value of a and b, if we know the value of a and b, तो अपन यहाँ से क्या कमेंट कर सकते हैं, सिंबल आ जाएगा अपने पास, और वही सिंबल किसका है, न्यूट्रॉन का। ओके सर, आई अंडरस्टूड, थैंक यू। ये न्यूट्रॉन का सिंबल अभी बता दूं। डन? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ओके देन, चलो देन ये प्रॉब्लम करो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E by M रेशियो, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम +2 आयंस, प्रोटॉन पे चार्ज पता ही है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा -E, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 0। मेरे को ऑर्डर बताना है। हीलियम पे चार्ज कितना होगा, रिलेटिव चार्ज +2 है, ओवरऑल चार्ज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ E। ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे चार्ज कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ E, यस और नो। ऑर्डर बताओ, सोचो क्या होगा ऑर्डर। टेक 2 मिनट्स का टाइम एंड देन इसको आराम से करो।
ओके, क्या आंसर क्या है? हेलो, चल चलो यार देखते हैं, ई बाई एम रेशियो न्यूट्रॉन का तो कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन का तो ई बाई एम रेशियो हो जाएगा 0। न्यूट्रॉन का तो हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन का होगा ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ही निकालना है, इसलिए मैंने ई ही लिखा, माइनस ई नहीं लिखा। प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का हो जाएगा ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम का मास नंबर कितना है? 4। तो हीलियम का चार्ज तो कितना होगा? हीलियम का चार्ज होगा 2e, और मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सबसे कम तो न्यूट्रॉन का है, सबसे कम तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, हाँ। सबसे कम तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। फिर अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इसमें और इसमें, तो किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन? वो 1/2 है ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और ये है ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। बच्चे अल्फा पार्टिकल्स का कितना है? अल्फा पार्टिकल्स है ई हाफ इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल्स का ज्यादा होगा या फिर प्रोटॉन का ज्यादा होगा? प्रोटॉन का है ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स का है हाफ अपॉन ई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों में से किसका ज्यादा हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होगा किसका? प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? सबसे कम। ये तो पहले ही बता चुका हूँ। ई बाई एम रेशियो जो है वो कैथोड रेज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनोड रेज। इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो ज्यादा होगी कि मास क्या है कम। क्लियर है बच्चे लोग? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट सबको? अगर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता, साइन से पूछा होता, सबसे कम किसका आता? अगर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बोला होता और मैंने साइन बोला होता, सबसे कम किसका आता? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना आता? नेगेटिव होता तो उसका सबसे कम होता है ये बात। ये तुम्हारे पास सेक्शन हो गया। चलो, अब तुम्हारे पास स्टार्ट होंगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इसके लिए ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है बोर मॉडल। स्टार्ट करने से पहले वी विल सी 2-3 थोड़ा वेव का थ्योरी, क्योंकि बोर मॉडल में वहां पे उसका यूज होगा। नेक्स्ट सेक्शन है तुम्हारे पास, ये पूरा नहीं होगा आज के लेक्चर में, बट थोड़ा बहुत अपन स्टार्ट कर। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है? चलो, तो वेव का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये।
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे पास वेव नंबर, वेवलेंथ, सॉरी नॉट वेव नंबर, वेवलेंथ। तो लेट से अगर सपोज तुम्हारे पास एक वेव है, जो पीक होते हैं उसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये और ये दो कंसेक्यूटिव पीक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेस्ट। या फिर जो मिनिमा है, दो जो मिनिमम पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस, दे आर कॉल्ड द थ्रो। थ्रोट्स, GHS। तो दो पीक के, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो थ्रोट के बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं वेव। दो कंसेक्यूटिव पीक के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव थ्रोट के बीच का डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, वेव। अगर मेरे को वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, ये जो डिस्टेंस दो पीक के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है, लैम्डा, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पीक से नेक्स्ट पीक कहां पर आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, या फिर दो थ्रोट के बीच का डिस्टेंस, ये इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो वही डेफिनेशन ऊपर लिख के रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड थ्रोट ऑफ द वेव एज शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर। ठीक है, जो फिगर बना के रखा है उसके बीच में जो क्रेस्ट और थ्रोट के बीच का डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड ग्रीक लेटर, एंड इसका यूनिट होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट अपन हमेशा ऐसे याद नहीं रखते, अपने लिए वेव क्या होगा, लेट्स से जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 1, पॉइंट 1 से स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट वैसा ही पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट। तो पॉइंट 1 ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ये वापस पूरा राउंड लगा के जिस पॉइंट पे फिर से आ रहा है उसको अपन बोलते हैं वेव। अपन हमेशा इस तरीके से उसको याद रखें, अपने लिए वेवलेंथ क्या है, दिस इज द लेंथ। सेम थिंग है, मतलब पीक से पीक का डिस्टेंस या फिर थ्रोट से थ्रोट का बीच का डिस्टेंस, और अपन हमेशा ऐसे याद रखेंगे जहां से स्टार्ट हुआ वापस किस डिस्टेंस पे जाके वो पॉइंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको, यस नो। इसको पॉइंट देते हैं 3, इस पीक को, इस ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट देते हैं 4, ये जो पॉइंट इसको पॉइंट देते हैं 5, और ये जो पॉइंट इसको पॉइंट देते हैं 6। तो अगर मैंने तुमको बोला कि डिस्टेंस 1 और 3 के बीच में कितना, 1 और 3 मत निकालो, पहले 1 और 4 के बीच में बताओ, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना होगा। 1 से 4, 1 से 2 अगर लैम्डा है तो 1 से 4 कितना होगा, 1 से 2 अगर ऐसा लैम्डा है तो 1 से 4 कितना होगा, λ/2। गुड। 1 से 3 कितना होगा, 1 से 4 अगर λ/2 है तो 1 से 3 कितना होगा, λ/4। गुड। तो 1 से 3 इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, कि कभी भी ऐसा कर्व बनता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, λ/4।
ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व बनता है, हाफ का भी हाफ वो होता है λ/4। तो 1 से 5 तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1 से 4 तक का पता है, 4 से 5 तक का निकाल लो। 1 से 4 तक का डिस्टेंस कितना है? 1 से 4 तक का है 1 से 4 तक का है λ/2, 4 से 5 तक का हो जाएगा λ/4, 3 λ/4। और 1 से 6 तक का कितना होगा? वन से 6 तक का कितना होगा? 1 से 2 तक का कितना है लैम्डा, और 2 से 6 तक का कितना है λ/2? कितना हो जाएगा? 5 λ/2। सिंपल सी चीज है, उसमें बहुत कुछ खास कोई स्टेटमेंट है नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें ये देखते हैं। लैम्डा क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट जनरली, बट वेव का डिस्टेंस जो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए अपन यूज करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या यूज करते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना होगा ये? टेन टू दी पावर 10 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा? इंटू 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटू 100 करूंगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 नैनोमीटर भी होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। इसको कितना लिखूंगा मैं? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। वैसे एक और टर्म भी होता है, 1 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12। गुड। 1 परमीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻, एंड 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। गुड। तो ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। मतलब पिकोमीटर तक फिर भी ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर और पिकोमीटर तो पता ही होना चाहिए। बाकी भी कभी ना कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज जनरली वो इतना नहीं ध्यान देते हैं। तो वही सेम चीज ऊपर लिख के रखी है, लैम्डा का डेफिनेशन क्या है। क्या लैम्डा सबको क्लियर है क्या? तो चलो अपन थोड़ा सा क्लास जो है वो एक्सटेंड करेंगे 5 मिनट्स, लेट्स 5-10 मिनट्स, ठीक है? हाँ, मिलीमीटर इतना कम डिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है? वेव के अंदर अपन स्लाइटली थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड करके जो वेव के 2 डेफिनेशन है वो भी देखेंगे। मीटिंग लीव भी मत करना कि नेक्स्ट टाइम जो भी है, अब तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, न्यूमेरिकल सारे इसी पे ही है। तो थोड़ा सा कोई अपन फोकस होके नोट्स को रेगुलर पढ़ो, एंड उसके बेसिस पे अब स्टार्ट कर देंगे। सेकंड तुम्हारे पास डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। सेकंड डेफिनेशन क्या है तुम्हारे पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि लेट्स से फ्रीक्वेंसी के साथ साथ टाइम पीरियड का भी डेफिनेशन अपन देते हैं। लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास ये है और ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इसको पूरा ऐसे ट्रेवल करते करते यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लग रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट सर्किल ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम। इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहा है और वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? 1 टाइम पीरियड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से।
क्या ये सबको पता है? ठीक है, मतलब सिंपली क्या चीज है, अगर सपोज पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको बोलते हैं लैम्डा, जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट 1 हेलो नाउ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या पॉइंट था वो? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये क्लियर है सबको? वही सेम चीज तुम यहाँ से भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट वापस उस सर्किल तक आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब एक चीज ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं तुमको बता। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस स्टार्ट होके वापस यहीं पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो कितनी बार पास हो रहा है? स्टार्ट किया, वापस यहाँ तक आया, एक बार पास हुआ। यस, तो टाइम पीरियड अगर टी है, टी टाइम पीरियड में नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट, तो टाइम पीरियड टी में नंबर ऑफ वेव कितनी पास हो रही है? 30 सेकंड में नंबर ऑफ वेव पास हो रही है एक, तो 1 सेकंड में कितनी पास होगी? अगर टी सेकंड में एक वेव पास हो रही है तो 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से? दैट इज द 1/t, सिंपल यूनिटरी मेथड। और यही क्या होता है, यही फ्रीक्वेंसी होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं लैम्डा, जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में नंबर ऑफ वेव जो पास हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो कितनी है? 1। तो 30 सेकंड में एक वेव पास हो रही तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास होगी? 1/t। यही क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आज की क्लास फिनिश है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन पर सेकेंड। इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड, और समटाइम इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? सॉरी, कितनी वेव पास हो रही है 1 सेकेंड में, कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। या फिर कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। उसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। ये फॉर्मूला क्या है इसको अभी अपन नहीं देखें, नेक्स्ट क्लास में देखें। साइकिल का डेफिनेशन बता ही चुका हूँ, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस कब आ रहा है। क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में किसी को कुछ डाउट है?
चलो अब मतलब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट स्टार्ट हो गई, मतलब ये अब चीजें ऐसी स्टार्ट होगी जिसके बारे में तुमको आइडिया नहीं था, तुमने 9th-10th में इसके बारे में नहीं पढ़ के रखा। थोड़ा सा बी फोकस्ड, क्लास रेगुलर अटेंड करना है, जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसको घर पे जाके फिर से उसी दिन रिवाइज करना है। अगर तुमने उसी दिन रिवाइज नहीं किया, यू विल लॉस्ट ट्रैक, तुमको एक पॉइंट के बाद कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखो, ये तुम्हारे 10th बोर्ड के एग्जाम नहीं है, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कितने कितने लोग जेई मेंस देते हैं, आइडिया है तुमको? मतलब बहुत ज्यादा, अगर मैं नंबर बताऊंगा तो फालतू में तुम डर जाओगे, तो नंबर अभी रिवील नहीं कर रहा। ये है कि बहुत सारे लोग जेई मेंस एग्जाम देते हैं, इसमें से अच्छी रैंक मतलब 20,000, 30,000, 40,000 के अंदर आना रहता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर तुमको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, और प्लस कुछ और चीजें भी देखो कि तुम यूनिक क्या कर सकते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तुम क्या ऐसा यूनिक कर सकते हो ताकि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। नोट्स सब बना रहे हैं, थ्योरी सब पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग सब कर रहे हैं, ये चीज देखो कि तुम्हारे पास क्या ऐसा यूनिकनेस है। अगर तुम 10th बोर्ड के बेसिस पे अगर प्रिपरेशन करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। यू विल फील दैट 2-3 लेक्चर और होने तो यू विल जस्ट सी दैट के मतलब कि कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब मैंने तुमको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर सपोज मैंने आज एक लेक्चर पे मैं कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस बना सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। बुक क्या करना है, होमवर्क क्या करना है, मैं तुमको नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड से तुमको होमवर्क भी मिल जाएगा। अभी तुमको कोई रेफर नहीं करना, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। अभी तुम अपना लेक्चर ऑफिशियली है, ठीक है, तो तुमको जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क।